Welcome, Jai Hind, all my viewers and subscribers. Thank you for your responses towards my videos. I am very thankful to you. Today, in this video, we will talk about modes of speech delivery, the most important topic for BTech second semester students going to face AKTU external examinations. So, before I start, let me give you an introduction about this. That we know that having something to say is not enough. One needs to know how to say it. Before you are going to say something or you have something to say, you needs to know how to say it. कुछ कहने के लिए पर्याप्त कुछ होना पर्याप्त नहीं है. आपको ये जानना पड़ता है कि किस प्रकार से उस बात को रखा जाए, किसी सिचुएशन में किस प्रकार का कंटेंट है, किस प्रकार का सब्जेक्ट मैटर है, उसको किस प्रकार से रखा जाए तो उसकी सक्सेस ज़्यादा होगी. तो स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट presentations, there are 4 modes of speech delivery are used. 4 modes होते हैं स्पीच डिलीवरी के. Because in professional setup you face different situations in presentations. You have to fulfill different objectives, and in that case you have to transmit different kind of subject matter. So we will talk about 4 modes of speech delivery. It is repeated question in AKTU examination, so please pay your complete attention. 4 modes of speech deliveries are: first one is extemporaneous mode of presentation, second is impromptu mode of speech delivery, third one is manuscript mode of speech delivery, and fourth one is memorization. So first is extemporaneous mode of delivery. It is most popular and commonly used mode of delivery for formal content in formal situations. In classroom presentations, teacher use it continuously, and presentations through slides, presentations with the help of PowerPoint presentations are the finest example of extemporaneous mode of delivery. तो ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है because it is simple, clear and lucid. Speaker gets sufficient time to prepare for the presentations, and he is formally informed that he has to present something, some aspects related to some subject on this टाइम पीरियड. तो फॉर्मल औपचारिकता उसको पता होती है कि किस दिन किस समय पर क्या उसको डिलीवर करना है, तो उसके लिए और समय भी होता है, तो उसके लिए वो तैयार कर सकता है. तो एडवांटेजेस की बात करें तो बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट स्पीकर के पास पूरा समय होता है, वो अपना तैयारी कर सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है. द स्पीकर कैन प्रिपेयर नोट्स एंड नोट कार्ड्स, नोट्स बना सकता है, नोट कार्ड्स बना सकता है, मटेरियल तैयार कर सकता है जिसे वो डिलीवर करना चाहता है प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकता है अच्छे तरीके से, स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकता है. एंड सेकेंड एडवांटेज इज दैट स्पीकर कैन यूज द नोट्स एंड नोट कार्ड्स इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन इन केस ही और सी फॉरगेट समथिंग. कुछ भूलता है, कुछ उस तरह की चीज़ें आती तो वो नोट्स और नोट कार्ड्स की हेल्प ले सकता है. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें, इट इज़ ईजी फॉर द स्पीकर टू प्रेजेंट अ फॉर्मल कंटेंट इन फॉर्मल सिचुएशन थ्रू दिस मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी. तो अगर कहीं फॉर्मल सिचुएशन है, फॉर्मल कंटेंट है, तो इसका बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑडियंस फील्स कंफर्टेबल बिकॉज स्पीकर गोज स्मूथ. स्पीकर आराम से चीज़ें डिलीवर करता है, तो ऑडियंस के लिए भी उसको स्पीकर को समझ पाना आसान होता है क्योंकि प्रिपरेशन प्रॉपर होती है. बिगेस्ट डिसएडवांटेज, the disadvantage of this mode of delivery is that because audience knows that it is extemporaneous mode of presentation, speaker had proper time to prepare for the notes and note cards, matter and material. So in that case, in case the speaker relies too much on notes and note cards rather than speaking ना, अगर नोट्स पर ही रिलाई करने लगता है तो मैन्युस्क्रिप्ट मोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ऑडियंस का भरोसा स्पीकर पर कम हो जाता है. ठीक है, क्योंकि तैयारी करने के लिए अवसर मिला तो ये दिखाता है कि द स्पीकर इज सिंसियर नहीं है, और इसकी वजह से ऑडियंस का फेथ उस पर चला जाता है, क्योंकि तैयारी मिलने के बाद भी अगर तैयार ना करना, ये बड़ी खराब बात है. सेकेंड इज इम्प्रॉम्प्टू मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी. इट इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल स्पीचेस. Informal speeches in the sense the speaker has
not formally has not been formally informed that he has to deliver something on some topic or some day or some time. स्पीकर को पता नहीं होता है कि उसे बोलना है और सडनली ही इज आस्क्ड फॉर delivering few words. For example, it is birthday party of your friend and you are suddenly invited to deliver vote of thank to the guests. So in that case what happens, if you are good speaker, it is an opportunity for you. अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो एक बिल्कुल आपके लिए अवसर की तरह है वहां पर अपना प्रभाव, क्योंकि ऐसे में ऑडियंस को भी पता होता है कि बिल्कुल बिना तैयारी के बोलना पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, बेहतर बोल सकते हैं, तो फिर आप बिल्कुल ऑडियंस के दिल और दिमाग को जीतने वाला स्थिति आपके लिए होती है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि इफ यू आर नो वॉइस स्पीकर, नॉवेल स्पीकर, नए नवेले स्पीकर है, यू आर नॉट फेमिलियर विद द टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज एंड स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशंस, यू हैव नेवर स्पोकन, तो इन दैट केस आपको पूरा प्रेजेंटेशन जो है खराब हो सकता है. यू कैन फील एंजाइटी, फियर, ऑडियंस फियर, बहुत सारी चीजें हो सकती है और इसमें आप फेल भी कर सकते हैं. तो इसमें क्या है कि कर क्या सकते हैं, यू कैन फॉर बेटर प्रेजेंटेशंस यू कैन यूज द एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स क्या होते हैं, जैसे कोई आपने पर्सनल इंसिडेंट उठा लिया, कोई श्लोक से शुरुआत करी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे बर्थडे पार्टी है तो उसमें आपने जैसे ही आपने अपने फ्रेंड्स के बारे में कोई पर्सनल आप डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि मुझे याद है अपने दोस्त के बारे में वो घटना, तो सडनली इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ ऑडियंसेस. रिलीजियस इवेंट है तो आप देखें लोग श्लोक वगैरह का कोई छोटी मोटी कहानी सुनाते हैं या कुछ और चीजें, जिससे कि ऑडियंस का अटेंशन गेन करके. और सबसे बड़ा इसका फायदा ये है, एडवांटेजेस की बात करें, यू डोंट हैव टू डिलीवर द कंटेंट विच इज रिटन समवेयर. और या आपको कोई जैसे हम लोग इस विषय पर बिल्कुल सिस्टमेटिकली बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, ऑडियंस के मूड के हिसाब से आप अपने स्पीचेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो आप कैसा भी ऐसी सिचुएशन आते हैं तो उसमें अपने हिसाब से हैंडल करना है. सबसे डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप नए नवेले स्पीकर हैं, अच्छे से नोवाइस स्पीकर हैं, नए नवेले स्पीकर हैं, बोलना नहीं जानते हैं, अपने सीखा नहीं है, प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज नहीं सीखी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है. लेकिन ऐसे स्पीचेज जो इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेज आपके लिए एक अवसर है, आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा देने के काम आते हैं. नेक्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट मोड ऑफ डिलीवरी, स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स एंड स्क्रिप्ट्स. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट मोड ऑफ डिलीवरी इज यूज्ड इन केस ऑफ मोस्ट फॉर्मल सिचुएशन, जहां पर इवन सिंगल मार्जिनल एरर, एक एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन स्पीचेस. जहां पर जैसे कि यूएनओ में किसी का स्पीच हो, है ना, या प्रेस ब्रीफिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहां पर एक एक शब्द का मायने निकाला जाता है, सिंगल वर्ड इज डिकोडेड प्रॉपरली. तो वहां पर क्या है कि अगर आप पूरी बात नहीं रख पाते हैं, सही ढंग से बात नहीं रख पाते, सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते, तो कंट्रोवर्सी होने के चांसेस रहते हैं या कुछ मिस आउट होने के चांसेस रहते हैं. तो वेयर यू हैव द फियर टू लूज समथिंग, एंड द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू लूज समथिंग it can create a big impact. In that case there is a best mode of delivery to delivery, that is manuscript mode of delivery, in which matter is written out, every single word, every information is written out. You don't have the fear to lose any information. कोई इन्फॉर्मेशन गंवाने के चांसेस नहीं रहते, सब पूरा लिख लिया जाता है, एडिट कर लिया जाता है, करेक्शंस कर लिए जाते हैं, फाइनलाइज कर ली जाती है मैन्युस्क्रिप्ट, एंड द रीडर हैज टू रीड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट. रीडर को मैन्युस्क्रिप्ट रीड करना पड़ता है एक एक शब्द, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं. यू मस्ट बी अ गुड रीडर. अगर आप अच्छे रीडर नहीं है, रीडिंग स्किल्स नहीं है, रीडिंग इज अ डिफरेंट स्किल, तो हम लोग ये इस पर बहुत सारी चर्चा करते हैं. तो अगर आपके अंदर रीडिंग स्किल्स नहीं है तो फिर ये स्क्रिप्ट में ऑडियंस अटेंशन गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो सकती है. ऑडियंस आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स ने चूंकि मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं जहां पर एक्सटेम्पोरेनियस करना चाहिए और अलग इम्प्रॉम्प्टू करना चाहिए, इम्प्रॉम्प्टू मोड ऑफ डिलीवरी का सिलेक्शन करना चाहिए, तो रीड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट. तो दे हैव लॉस्ट देयर फेथ इन देयर ऑडियंस. उनकी एक बहुत बड़ा ऑडियंस थी और वो गायब हो गई है. तो इन दैट केस मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग में रीडिंग स्किल्स, जैसे न्यूज़पेपर रीडर होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, वो रीडिंग स्किल्स उनमें होती हैं, तो पता भी नहीं चलता कि वो आपसे ओरली बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं कि वो दे आर रीडिंग फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट. लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अट्रैक्टिंग अटेंशन of the audience is less. Making proper eye contact with the audience can be missed if you don't have reading skills. Another is memorization mode of delivery.
memorization mode of delivery is very difficult, most difficult mode of delivery, सबसे मुश्किल डिलीवरी है चुनने में, because only handful of you have the capacity to memorize each and every word. बहुत कम लोगों में ये क्षमता होती है कि वो एक एक शब्द रट डालें, एक एक प्रेजेंटेशन के एक एक एंगल, जैसे डांस वगैरह में आप लोग करते हैं कि एक एक एक्शंस, एक एक वर्ड, एक एक जो है एक एक एक्टिविटी जो है आप प्रिपेयर कर लेते हैं. अगर अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं तो यू विन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द ऑडियंस. अगर आप इस मेमोराइजेशन टेक्निक मोड ऑफ डिलीवरी का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंटेशंस करते हैं और आप सक्सेसफुली मेमोराइज कर लेते हैं, तो फिर इससे बढ़िया प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने का तरीका नहीं होता है. यू विन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल. लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर आप जरा सा भी, इफ यू फॉरगेट इवन ए सिंगल स्टेप, इवन ए सिंगल वर्ड, इवन ए सिंगल एक्टिविटी, इन दैट केस होल प्रेजेंटेशन कैन गो इनटू वेन. खराब हो सकता है, बेकार हो सकता है, किसी काम का नहीं रह सकता प्रेजेंटेशंस. तो ऐसे में ये 4 मोड ऑफ डिलीवरी थे. एक्सटेम्पोरेनियस आपका हो गया, और इम्प्रॉम्प्टू, और आपका मैन्युस्क्रिप्ट, मेमोराइजेशन. तो इन चारों मोड का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग क्या कहते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कंटेंट को जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप डिलीवर करिए, ताकि आपको प्रेजेंटेशंस में एक सक्सेस प्रॉपर मिले. इसके लिए आप जो है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. थैंक यू.